For the longest time, figuring out India's retirement savings rules felt like trying to solve a really complicated puzzle. But guess what? A huge update has just swept away a ton of that complexity, especially when it comes to your Provident Fund. So today, we're going to break down exactly what's changed and, more importantly, what it all means for your money. So, is this going to affect you? The short answer is a big, resounding yes. A recent overhaul, honestly one of the biggest in years, is designed to slice right through the confusion that's been bogging down the system for way too long. All right, so to really get why this update is such a game changer, we first have to look at the problem it's fixing. I mean, for over 70 years, India's retirement system was basically running on two completely different and often conflicting sets of rules at the same time. Think about it like this. It was like trying to navigate a city using two different maps, one printed today and another one from 70 years ago. You had two major laws trying to do the same job, but they just weren't in sync. The labor law, which is the EPF Act of 1952, and the tax law, the Income Tax Act. And here is where things got really messy. See, the Income Tax Act had its own very specific ideas about how a provident fund should work to get tax benefits. But at the exact same time, the EPF Act had its own, often different, rulebook for how those same funds should operate. It was, a recipe for chaos. And the result of these two competing systems, it was pretty much a disaster. You had widespread confusion for both employers and employees, a total nightmare of compliance headaches for companies trying to follow two sets of rules, and a flood of completely avoidable lawsuits. Just a mess. But thankfully, the recent union budget finally decided enough was enough. It was time to fix this thing once and for all, and they introduced a series of changes to finally bring these two worlds together. The key word here is rationalization. Now, that's just a fancy way of saying the main goal was to harmonize everything, to get rid of all the duplicate and conflicting rules, and to create one single logical system that everyone could actually follow. Simple, right? So how exactly did they untangle this 70-year-old knot? Well, it all comes down to 4 key changes that are now in effect. Let's dive into each one. The first big change makes it way, way easier for a provident fund to get its tax-exempt status. The new principle is super simple. There's now just a single gateway for approval. One door, one approval. Okay, so here's how it works now. Before, a PF trust had to go get separate approvals from the income tax department. Total headache. Now, if a trust gets its exemption under Section 17 of the EPF Act, boom, it automatically qualifies for tax recognition. It's one and done. No more confusion. The second key change is all about giving PF trusts more freedom and, flexibility in how they invest your money. This one's a big deal. So here's the crucial point. The old Income Tax Act had this super rigid rule that forced PF trusts to invest at least 50% of their funds in government securities. That rule? It's gone. Vanished. Now trusts can follow the more modern and dynamic investment guidelines from the EPFO, which could, potentially, lead to better returns for you over the long haul. Okay, now we get to the big one. This is probably the most significant change for most employees and employers. The government has basically thrown out a whole bunch of complex, confusing contribution rules and replaced them with one single clear limit. And this right here is the number you need to remember, 7.5 lakh rupees. This is the new single combined annual limit for tax-free contributions that your employer can make into all of your retirement accounts. I mean, the difference is just night and day. The old system was a jungle of complicated limits based on percentages of your salary, and there were even different, stricter rules if you were a shareholder in your company. All of that is gone. Now it's simple. Your employer can put a combined total of up to 7.5 lakhs a year into your EPF, NPS, and superannuation, all tax-free. Anything more than that gets taxed as a perk. And the final piece of this simplification puzzle is a change that's a huge sigh of relief for employers on the compliance front. It's all about tax deductions and making the deadlines, smarter.
So get this. Previously, if an employer missed depositing the employee PF contributions by the super strict monthly deadline, even by just one day, they'd lose the tax deduction for it completely. The new rule is so much more practical. Now they can claim that deduction as long as the payment is made before their main income tax return is due. Makes sense, right? So, we've gone through the 4 big changes, but let's get down to brass tacks. What's the practical impact here? What does this actually mean for you, whether you're an employee or you're running the business? For employees, the takeaway is crystal clear. Up to 7.5 lakhs a year in employer contributions to your retirement funds is totally tax-free. Now, if you're a high earner and your company contributes more than that, the extra amount will now just show up on your payslip as a taxable perk. Oh, and if you're an employee shareholder, you're now treated just like everybody else. No more special, complicated rules. And for employers, there's a pretty clear action plan. First things first, update your payroll systems to reflect that new 7.5 lakh ceiling. Second, if you run your own PF trust, you absolutely have to make sure it has that crucial Section 17 exemption. And third, and this is important, talk to your staff. Make sure everyone, especially high earners, understands these changes. So when you take a step back and look at all these changes together, what's the big picture here? What's the bottom line? You know, this isn't just some technical tweak. The government itself, through the Ministry of Labor and Employment, has officially welcomed these reforms. It's seen as a major, major step forward in creating a single, harmonized system for our retirement savings. And this quote from the official press release really says it all. The whole point is convergence and harmonization. It's about making things work better for everyone involved. Employees, employers, you name it. It's about making one of the world's largest social security systems simpler and just more effective. This massive simplification is designed to cut down on confusion, reduce lawsuits, and just make life easier for everyone. So it leaves us with a pretty important final question. By finally untangling these decades-old knots, is India's retirement system now truly ready for the challenges and opportunities of the 21st century? It sure feels like a powerful step in the right direction. आज हम भारत के प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ सिस्टम में हुए एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी समझने वाले हैं। देखिए, केंद्रीय बजट 2026-27 ने दशकों से चली आ रही एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। पता है, ये सवाल पुराने पीएफ सिस्टम की पूरी कहानी कह देता है। सालों तक कंपनियों और कर्मचारियों को 2 अलग-अलग कानूनों के बीच में ही पिसना पड़ रहा था और मजे की बात ये थी कि ये दोनों कानून एक दूसरे से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते थे। मामला ये था कि एक तरफ था इनकम टैक्स एक्ट, जो टैक्स छूट और इन्वेस्टमेंट को लेकर अपने सख्त नियम चलाता था। वहीं दूसरी तरफ था ईपीएफ एक्ट, जिसके अपने ही अलग नियम कायदे थे। अब इन दोनों में कोई तालमेल तो था नहीं, जिससे एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन बन गई थी। तो इसका नतीजा क्या हुआ? जाहिर है, भारी कंफ्यूजन, कंपनियों के लिए एक सिरदर्द और टैक्स को लेकर कभी न खत्म होने वाले झगड़े। मतलब एक ऐसा सिस्टम बन गया था जिसमें सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत थी। और फिर वो सुधार आया केंद्रीय बजट 2026-27 के रूप में। ये एक ऐतिहासिक पल था जब सरकार ने तय किया कि बस अब इस दशकों पुरानी पहेली को हमेशा के लिए सुलझाना ही है। इस बदलाव का मकसद बिल्कुल साफ था, प्रोविडेंट फंड के लिए एक आसान, एक जैसा और सुलझा हुआ सिस्टम बनाना, सब कुछ एक छत के नीचे लाना। और हाँ, इस कदम का ईपीएफओ ने भी खुले दिल से स्वागत किया। इस पूरे बदलाव में बस 2 तारीखें हैं जो याद रखनी है। पहली 1 फरवरी 2026 जब बजट पेश हुआ, और दूसरी 1 अप्रैल 2026 जिस दिन से ये सारे नए नियम पूरे देश में लागू हो गए। तो ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। चलिए एक एक करके समझते हैं कि वो 4 बड़े बदलाव कौन से हैं और ये नया सिस्टम असल में काम कैसे करता है। पहला बदलाव, और ये बिल्कुल बेसिक है, ये टैक्स की मंजूरी के प्रोसेस को एकदम आसान बनाता है। अब पीएफ ट्रस्ट्स के लिए टैक्स अप्रूवल पाने का सिर्फ एक ही सीधा रास्ता है। देखिए, यहाँ कितना आसान हो गया है। पहले क्या था?
टैक्स मान्यता के लिए एक अलग ही चक्कर काटना पड़ता था। पर अब 1 अप्रैल 2026 से नियम बिल्कुल सीधा है। अगर किसी पीएफ ट्रस्ट को ईपीएफ एक्ट के सेक्शन 17 के तहत छूट मिली है तो ही उसे टैक्स की मान्यता मिलेगी, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। ये जो लाइन है ना, ये पूरे बदलाव का निचोड़ है। इसका सीधा सा मतलब है कि लेबर लॉ और टैक्स लॉ दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया है। बस एक ही दरवाजा, एक ही मंजूरी। चलिए अब दूसरे बड़े बदलाव की बात करते हैं, और ये जुड़ा है इन्वेस्टमेंट की आजादी से। मतलब पीएफ ट्रस्ट अपना पैसा कहां और कैसे लगा सकते हैं। सोचिए, पहले एक बहुत ही सख्त नियम था कि पीएफ फंड का कम से कम 50% हिस्सा सरकारी सिक्योरिटीज में ही लगाना पड़ेगा। ये एक तरह का बंधन था, लेकिन अब वो 50% वाला बंधन पूरी तरह खत्म। अब ट्रस्ट्स ईपीएफओ के ज्यादा फ्लेक्सिबल और समय के साथ बदलने वाले नियमों को फॉलो कर सकते हैं। तो मतलब साफ है, अब इन्वेस्टमेंट के फैसले ज्यादा समझदारी और आजादी से लिए जा सकते हैं, जिससे उम्मीद है कि रिटर्न भी शायद बेहतर मिलेगा। अब आते हैं तीसरे बदलाव पर, और हाँ, ये शायद सबसे बड़ा और सबसे असरदार बदलाव है कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों के लिए। बस ये एक नंबर इसे ध्यान में रखना है, 7.5 लाख रुपए। यही है वो नया मैजिक नंबर, एम्प्लॉयर की तरफ से होने वाले कंट्रीब्यूशन की नई सालाना लिमिट। पहले इतने सारे अलग अलग और उलझे हुए नियम थे कि पूछिए मत, लेकिन अब सब खत्म। बस एक सीधा सा नियम है, एम्प्लॉयर की तरफ से ईपीएफ, एनपीएस और सुपर एन्युएशन फंड, इन सब को मिलाकर अगर साल का 7.5 लाख रुपए तक का कंट्रीब्यूशन है तो वो टैक्स फ्री है। और हाँ, अगर इससे एक भी रुपया ज्यादा हुआ तो वो कर्मचारी की इनकम में जुड़ जाएगा और उस पर टैक्स लगेगा। सिंपल। और अब चौथा और आखिरी बड़ा बदलाव, ये एम्प्लॉयर्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है, खासकर जब बात नियमों के पालन की आती है। पहले का नियम तो बहुत ही सख्त था। सोचिए, अगर एम्प्लॉयर ने कर्मचारी का पीएफ जमा करने में सिर्फ 1 दिन की भी देरी कर दी तो बस टैक्स डिडक्शन का फायदा गया। लेकिन अब इसे ठीक कर दिया गया है। अब एम्प्लॉयर अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट तक भी अगर पैसा जमा कर देते हैं तो भी उन्हें टैक्स डिडक्शन मिल जाएगा। तो ठीक है, नियम तो समझ लिए, पर सवाल ये है कि इसका असल जिंदगी में क्या असर पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयर्स और पीएफ ट्रस्ट्स के लिए इसके असल में क्या मायने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एम्प्लॉइज की। सबसे बड़ी बात, 7.5 लाख तक का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टैक्स फ्री है, उससे ज्यादा हुआ तो टैक्सेबल इनकम में जुड़ जाएगा। और अच्छी बात यह है कि अब चाहे कोई कर्मचारी शेयर होल्डर हो या कोई और, नियम सबके लिए बराबर है। हाँ, एक बात ध्यान में रखनी होगी, अपने खुद के कंट्रीब्यूशन पर जो 2.5 लाख से ऊपर के ब्याज पर टैक्स लगता था, वो नियम अभी भी वैसा ही है। अब बात करते हैं एम्प्लॉयर्स और एचआर टीमों की। उनके लिए जिंदगी थोड़ी आसान हुई है। पेरोल कैलकुलेशंस अब पहले से कहीं ज्यादा सिंपल हैं। लेकिन हाँ, उन्हें अपने सिस्टम को अपडेट करना होगा ताकि ये नई 7.5 लाख की लिमिट को ट्रैक किया जा सके। और सबसे जरूरी बात, जिन पीएफ ट्रस्ट्स को छूट मिली हुई है उन्हें ये पक्का करना होगा कि उनकी सेक्शन 17 की छूट वैलिड हो। अगर नहीं तो टैक्स बेनिफिट्स जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो इन बदलावों ने पीएफ का पूरा लैंडस्केप ही बदल दिया है। चलिए फटाफट देखते हैं कि इस नए एक जैसे सिस्टम के फायदे क्या क्या हैं। देखिए, 4 बड़े फायदे साफ नजर आते हैं। पहला, नियम आसान हो गए हैं, जिससे कंपनियों का समय और पैसा दोनों बच रहा है। दूसरा, कंफ्यूजन कम होने से कानूनी झगड़े भी कम होंगे। तीसरा, इन्वेस्टमेंट में आजादी से बेहतर रिटर्न की उम्मीद बढ़ी है। और सबसे बड़ी बात, आखिरकार इंडिया के टैक्स लॉ और लेबर लॉ रिटायरमेंट सेविंग्स के मामले में एक ही सुर में बात कर रहे हैं। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। अब जब सिस्टम इतना साफ, सरल और लचीला हो गया है, तो ये नई क्लैरिटी आने वाली पीढ़ी के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग को किस तरह से बदलेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा। डीप डाइव में एक बहुत ही दिलचस्प और ऐतिहासिक बदलाव पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा बदलाव जो भारत के रिटायरमेंट और टैक्स नियमों की पूरी दुनिया को पलटकर रख देने वाला है। और ये एक ऐसा विषय है जो सीधे तौर पर हर महीने आने वाली सैलरी, हमारी बचत और कंपनियों के काम करने के तरीके को गहराई से प्रभावित करेगा। बिल्कुल, मतलब अक्सर जब भी टैक्स या प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ की बात आती है तो बहुत से लोगों को लगता है कि अरे ये तो बहुत नीरस या उलझा हुआ टॉपिक है। हाँ, वो तो है। फाइनेंस की बातें अक्सर लोगों को बोरिंग ही लगती हैं। सही कहा।
लेकिन आज जो जानकारी सामने आई है वो सच मानिए किसी थ्रिलर से कम नहीं है, क्योंकि ये दशकों पुरानी एक ऐसी उलझन को सुलझा रही है जिसने अच्छे अच्छे फाइनेंस और एचआर मैनेजरों की नींदें उड़ा रखी थी। मैं तो कहूंगी कि इस बदलाव को सिर्फ कुछ नए नियमों की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। ये दशकों से चले आ रहे एक बहुत बड़े प्रशासनिक टकराव का अंत है। बिल्कुल। और आज की इस विस्तृत चर्चा के लिए हमारे पास जो स्रोत हैं वो बेहद खास और वजनदार हैं। मुख्य रूप से हमारे पास श्रम और रोजगार मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की एक गोपनीय या कह ले कॉन्फिडेंशियल आंतरिक शोध रिपोर्ट है। और इसके साथ ही प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी द्वारा जारी की गई आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति भी हमारी इस चर्चा का आधार है। जी, तो हमारा आज का जो मिशन है वो ये समझना है कि कैसे 1 फरवरी 2026 को पेश किए गए केंद्रीय बजट ने उस पुरानी भ्रम की स्थिति को खत्म कर दिया है जहां टैक्स कानून और लेबर कानून हमेशा एक दूसरे से टकराते रहते थे। ठीक कहा। तो ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये सिर्फ एक आम टैक्स बदलाव नहीं है, ये असल में दो अलग अलग दुनियाओं का ऐतिहासिक मिलन है। दो अलग दुनिया मतलब एक तरफ टैक्स और दूसरी तरफ लेबर। बिल्कुल। एक तरफ हमारे पास इनकम टैक्स एक्ट 2025 है, जिसका काम ये तय करना है कि किस आय पर टैक्स लगेगा और किस पर छूट मिलेगी। हाँ, और दूसरी तरफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड्स यानी ईपीएफ एक्ट 1952 है, जिसका काम है कर्मचारियों के भविष्य और उनके रिटायरमेंट के पैसे को सुरक्षित रखना। सही कहा। और दशकों से ये दोनों कानून बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में चल रहे थे। इस नए बदलाव ने सिस्टम से अनावश्यक मुकदमों और कंप्लायंस के भारी बोझ को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। वो भयानक उलझन जिसका सामना हर कंपनी कर रही थी, लेकिन ये जो दोहरे नियमों की ऐतिहासिक समस्या थी, इसे समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। गोपनीय रिपोर्ट को पढ़ते हुए ऐसा लगा जैसे कंपनियों और पीएफ ट्रस्ट को एक ही समय पर दो अलग अलग बॉस की सुननी पड़ती थी। और मजे की बात यह है कि वो दोनों बॉस एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। वही तो। एक आसान उदाहरण से सोचें तो एक तरफ इनकम टैक्स एक्ट के शेड्यूल 11 के कड़े नियम थे जो कहते थे कि अगर टैक्स छूट चाहिए तो ये शर्तें माननी होंगी, और दूसरी तरफ ईपीएफ एक्ट का अपना बिल्कुल अलग ढांचा था। समस्या केवल इनके अलग होने की नहीं थी, समस्या ये थी कि इन दोनों बॉस के निर्देश अक्सर एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते थे। मतलब एक कह रहा दाएं जाओ, दूसरा कह रहा बाएं जाओ। एकदम सही। इससे ये भ्रम पैदा होता था कि किस पीएफ फंड को टैक्स में छूट मिलेगी और किसे नहीं मिलेगी। ट्रस्ट मैनेजर्स के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था। मैं सोच रहा हूं उन लोगों के बारे में जिन्हें ये सब मैनेज करना होता था। कल्पना कीजिए कि एक नियम कहता है कि आपको अपना फंड एक खास तरीके से निवेश करना है, जबकि दूसरा नियम कहता है कि अगर आपने वैसा किया तो हम आपकी टैक्स छूट रद्द कर देंगे। बाप रे, दोनों कानूनों की शर्तों को एक साथ पूरा करना तो लगभग असंभव ही रहा होगा। बिल्कुल असंभव था। और इससे न केवल कंप्लायंस या अनुपालन की समस्याएं पैदा होती थी, बल्कि टैक्स विभाग और कंपनियों के बीच बहुत सारे विवाद होते थे जो सालों साल कोर्ट में खिंचते रहते थे। मतलब एक नाव उत्तर जा रही है और दूसरी दक्षिण, और कंपनियों को कहा जाता था कि दोनों नाव में एक साथ पैर रखकर सफर तय करो। ये तो वाकई में एक प्रशासनिक दुस्वप्न था। हाँ, और इसी बड़ी समस्या को सुलझाने के लिए जो पहला सबसे बड़ा कदम उठाया गया है वो है मान्यता के लिए सिंगल गेटवे। सिंगल गेटवे यानी अब सिर्फ एक ही दरवाजा होगा। रिपोर्ट के अनुसार पहले क्या होता था कि इनकम टैक्स एक्ट के तहत किसी पीएफ फंड को मान्यता मिल सकती थी, भले ही उसे लेबर कानून के तहत छूट ना मिली हो। बिल्कुल, और यही सिस्टम की सबसे बड़ी खामी थी। इसे एक तरह का लूप होल कह सकते हैं। टैक्स के फायदे लेने का एक अलग ही रास्ता खुला हुआ था, जिसका मतलब था कि कुछ कंपनियां लेबर कानून की सख्त निगरानी से बचकर भी टैक्स छूट का मजा ले रही थीं। जी, लेकिन अब जो नया नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहा है उसने इस जटिलता को पूरी तरह से सुलझा दिया है। अब एक ही दरवाजा और एक ही मंजूरी वाला सिस्टम लागू हो गया है। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि इनकम टैक्स की मान्यता अब सिर्फ और सिर्फ उन्हीं फंड्स को मिलेगी जिन्हें ईपीएफओ एक्ट के सेक्शन 17 के तहत आधिकारिक छूट प्राप्त है। एकदम सही। लेकिन स्रोत बार बार इस सेक्शन 17 का जिक्र कर रहे हैं। ये सेक्शन 17 असल में है क्या? अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझना हो तो ये कैसे काम करता है? देखिए, कल्पना कीजिए कि सेक्शन 17 ईपीएफओ द्वारा दिया गया एक वीआईपी पास है। वीआईपी पास? हाँ, आमतौर पर हर कंपनी को अपने कर्मचारियों का पीएफ का पैसा हर महीने सरकारी ईपीएफओ के खाते में जमा करना होता है। लेकिन कुछ बड़ी कंपनियां चाहती हैं कि वे ये पैसा सरकार को देने के बजाय अपना खुद का प्राइवेट पीएफ ट्रस्ट बनाकर उसे खुद मैनेज करें। अच्छा, तो ईपीएफ एक्ट का सेक्शन 17 उन्हें ये अपना खुद का ट्रस्ट चलाने की अनुमति देता है? जी, लेकिन ये वीआईपी पास ऐसे ही नहीं मिलता। इसके लिए शर्त ये होती है कि कंपनी का ट्रस्ट ईपीएफओ के कड़े सुरक्षा मानकों और नियमों का पूरी सख्ती से पालन करेगा। और कर्मचारियों को कम से कम उतना रिटर्न तो देगा ही जितना सरकारी ईपीएफओ देता है। बिल्कुल। अच्छा, तो अब नए नियम के बाद बात एकदम साफ है। अगर आपके पास लेबर मंत्रालय का वो सेक्शन 17 वाला वीआईपी पास नहीं है तो इनकम टैक्स विभाग भी आपको कोई भाव नहीं देगा, कोई अलग रास्ता नहीं बचा। एकदम सही पकड़ा आपने। ये तो एचआर और टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ही स्पष्ट और सिंगल विंडो अप्रोच है।
इससे ये तो तय हो गया कि अब कोई भी कंपनी नियमों के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएगी। हाँ, ये कदम सिस्टम से पूरी तरह अस्पष्टता को खत्म कर देगा। पहले जो कंपनियां इनकम टैक्स और लेबर कानून के बीच की ग्रे एरिया का फायदा उठाती थी, अब उनके लिए रास्ते बंद हो गए हैं। या तो आप पूरी तरह से कंप्लाइंट है या फिर आप बाहर हैं, कोई बीच का रास्ता नहीं। यहाँ बात वास्तव में बहुत दिलचस्प हो जाती है, खासतौर पे जब हम इस गोपनीय रिपोर्ट के दूसरे बड़े बदलाव की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, निवेश वाली बात। बिल्कुल, स्रोतों से एक ऐसा चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है जो सीधा कर्मचारियों के मुनाफे से जुड़ा है। मतलब पहले इनकम टैक्स नियमों के तहत पीएफ ट्रस्टों के लिए यह अनिवार्य था कि वे अपना 50% पैसा हर हाल में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी सुरक्षित सरकारी बॉन्ड में ही लगाएं, जो कि एक बहुत ही कठोर नियम था। बहुत ही ज्यादा। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस 50% की कठोर वैधानिक सीमा को इनकम टैक्स प्रावधानों से अब पूरी तरह हटा दिया गया है। तो इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा, है ना? हाँ, पहले फंड मैनेजर्स एक अजीब सी दुविधा में फंसे रहते थे। देखिए, सरकारी बॉन्ड बहुत सुरक्षित होते हैं, लेकिन उनमें रिटर्न या मुनाफा बहुत कम मिलता है। वो फिक्स रिटर्न वाली बात। जी, लेकिन ईपीएफओ के अपने निवेश नियम समय के साथ बहुत आधुनिक और गतिशील हो गए थे, जहां वे शेयर बाजार या अन्य बेहतर रिटर्न वाली जगहों पर भी थोड़ा पैसा लगाने की अनुमति देते थे। अच्छा, लेकिन प्राइवेट पीएफ ट्रस्ट के मैनेजर्स अगर ईपीएफओ के उन गतिशील नियमों का पालन करते थे, तो वे इनकम टैक्स के उस पुराने 50% वाले नियम को तोड़ बैठते थे। बिल्कुल, और अगर वे टैक्स नियम मानते थे तो निवेश का सही फायदा नहीं उठा पाते थे। बिल्कुल, तो ये तो सीधे तौर पर कर्मचारियों का नुकसान था, उनका पैसा बढ़ ही नहीं पा रहा था उस रफ्तार से। वही तो। लेकिन इस 50% की सीमा के हटने का असली दुनिया में क्या असर होगा? मतलब इसका एक आम नौकरी पेशा इंसान की रिटायरमेंट बचत पर क्या असर पड़ेगा? इसका असर बहुत विशाल होने वाला है। मान लीजिए किसी कर्मचारी का पीएफ ट्रस्ट पहले सिर्फ सुरक्षित सरकारी बॉन्ड्स में पैसा लगाता था, जहां रिटर्न फिक्स था, मान लेते हैं कि 7 या 8%। ठीक है। अब 1 अप्रैल 2026 से आजादी मिलने के बाद ये निवेश पूरी तरह से ईपीएफओ के गतिशील नियमों और उनके सर्कुलर के अनुसार होगा। इस सीमा के हटने से पीएफ फंड मैनेजर्स को निवेश में बहुत अधिक आजादी मिलेगी। यानी वे अलग अलग एसेट क्लास में अपना पैसा लगा सकेंगे। हाँ, अगर वही ट्रस्ट थोड़ा आक्रामक होकर अच्छे इक्विटी फंड्स या अन्य एसेट्स में निवेश करता है, तो 20 साल बाद उस कर्मचारी का जो रिटायरमेंट फंड बनेगा, वो पुराने सुरक्षित तरीके के मुकाबले कई गुना बड़ा हो सकता है। क्या बात है! ये सिर्फ एक टैक्स छूट का मामला नहीं है, ये रिटायरमेंट को लेकर धन सृजन यानी वेल्थ क्रिएशन का एक बिल्कुल नया नजरिया है। बिल्कुल सही कहा। निवेश में इस आजादी की बात सुनकर कंपनियों और कर्मचारियों दोनों को बहुत राहत मिलेगी, लेकिन पेरोल टीमों और ज्यादा सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए भी इस बजट में बहुत बड़ी खुशखबरी छुपी है, जो सीधे उनकी मंथली सैलरी स्लिप से जुड़ी हैं। हाँ, अब आते हैं तीसरे बदलाव पर। 7.5 लाख रुपए की नई सुपर सीलिंग। रिपोर्ट को देखकर सच में सिर चकरा जाता है कि पहले कितने जटिल नियम थे। बाप रे, वो पुराने नियम, एम्प्लॉयर के योगदान को नापने के लिए पैरिटी यानी समानता के नियम, सैलरी के 12% से जुड़े कैप और न जाने क्या क्या। और खासकर उन कर्मचारियों के लिए जो कंपनी में शेयर धारक भी थे, उनके लिए तो नियम और भी सख्त और भेदभावपूर्ण थे। वो पुराना ढांचा वास्तव में बहुत उलझा हुआ था। पेरोल टीमों के लिए एक बुरा सपना था सच में। हर महीने ये हिसाब लगाने में पसीने आ जाते थे कि एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता का कितना हिस्सा टैक्स फ्री है और किस हिस्से पर टैक्स लगना चाहिए। क्योंकि हर कर्मचारी की सैलरी का स्ट्रक्चर अलग होता है। किसी का ईपीएफ में पैसा जा रहा है, किसी का एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में जा रहा है, और कुछ बड़ी कंपनियों में सुपर एन्युएशन नाम का एक अतिरिक्त रिटायरमेंट फंड भी होता है। पहले इन तीनों के लिए अलग अलग शर्तें और प्रतिशत तय थे। इसे थोड़ा और खोलते हैं। ये सुपर एन्युएशन और बाकी फंड्स की जो अलग अलग गणित थी, उसने कैसे एचआर डिपार्टमेंट्स को परेशान कर रखा था? देखिए, पहले होता ये था कि ईपीएफ के लिए 12% की सीमा थी, सुपर एन्युएशन के लिए 1.5 लाख रुपए की एक अलग सीमा थी, और एनपीएस के लिए फिर से सैलरी का 10 या 14% की सीमा थी। ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई कर्मचारी कंपनी का शेयर धारक भी है, यानी उसके पास कंपनी के कुछ शेयर्स हैं, तो इनकम टैक्स विभाग उसे शक की नजर से देखता था। अच्छा। हाँ, और उसके लिए टैक्स छूट के नियम और भी कड़े कर दिए जाते थे। लेकिन नया नियम इस पूरे झमेले को एक झटके में खत्म कर देता है। तो अब 1 अप्रैल 2026 से ये हिसाब कैसे होगा? अब एक बहुत ही सरल, स्पष्ट और एकमुश्त नियम है। ईपीएफ, एनपीएस और सुपर एन्युएशन, इन तीनों में एम्प्लॉयर का जो कुल योगदान है, वो मिलाकर 7.5 लाख रुपए प्रति वर्ष तक पूरी तरह टैक्स फ्री है। बस, कोई प्रतिशत नहीं? कोई प्रतिशत नहीं, कोई अलग अलग सीमा नहीं। बस इन तीनों बाल्टियों में कुल मिलाकर जो पैसा गया है, वो 7.5 लाख रुपए से कम होना चाहिए। मतलब कोई पैरिटी नहीं, कोई सैलरी का प्रतिशत नहीं, सीधा 7.5 लाख रुपए का गणित। बिल्कुल। लेकिन रुकिए, अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आ सकता है कि अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी अपने किसी सीनियर अधिकारी के फंड्स में कुल मिलाकर 8 लाख रुपए डालती है, तो क्या होगा? स्रोत में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, परक्विजिट या अनुलाभ। इसका क्या मतलब है? देखिए, परक्विजिट को आसान भाषा में ऐसे समझें कि ये सैलरी के अलावा मिलने वाला एक अतिरिक्त फायदा या सुविधा है।
अगर एम्प्लॉयर का कुल योगदान 7.5 लाख रुपए की सीमा को पार कर 8 लाख रुपए हो जाता है, तो उस 7.5 लाख के ऊपर की जो भी अतिरिक्त रकम होगी, यानी इस उदाहरण में 50,000 रुपए, उसे सीधे उस कर्मचारी की आय में परक्विजिट के रूप में जोड़ दिया जाएगा। अच्छा, और फिर उस 50,000 रुपए पर कर्मचारी के टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। एकदम सही। ये तो बहुत ही पारदर्शी व्यवस्था है। बिल्कुल। और एक और बड़ी बात यह है कि जो शेयरधारक कर्मचारी हैं, उनके लिए जो पहले अलग और सख्त नियम थे, वे पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। मतलब अब कोई भेदभाव नहीं। कोई भेदभाव नहीं। अब सभी कर्मचारियों के लिए, चाहे वे कंपनी के मालिक हों, शेयरधारक हों या आम कर्मचारी, यही 7.5 लाख रुपए का समान नियम लागू होगा। ये पेरोल सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियों और एचआर टीमों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि अब उन्हें 50 तरह के अलग अलग फॉर्मूले नहीं लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? पेरोल टीम खुश, फंड मैनेजर खुश, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। हाँ, एक और जरूरी चीज है। खासतौर पर कंपनियों के संस्थापकों और एचआर टीमों के लिए एक बोनस बदलाव का भी जिक्र है हमारी रिपोर्ट में, जो सीधे तौर पर टैक्स डिडक्शन क्लेम की डेडलाइन से जुड़ा है। ये अनुपालन या कंप्लायंस के मोर्चे पर एक बहुत बड़ी राहत है, जिसे फाइनेंस बिल 2026 के सेक्शन 29(1)(e) के तहत लाया गया है। इसे समझने के लिए हमें पुराने नियम की सख्ती को देखना होगा, है ना? जी। पहले नियम ये था कि हर कंपनी को अपने कर्मचारियों के पीएफ का पैसा अगले महीने की 15 तारीख तक अनिवार्य रूप से जमा करना होता था। अगर कोई एम्प्लॉयर कर्मचारी के हिस्से का पीएफ जमा करने में 1 दिन की भी देरी करता था, तो उस कंपनी को उस पूरी रकम पर मिलने वाला इनकम टैक्स डिडक्शन का लाभ बिल्कुल नहीं मिलता था। एक सेकंड, मतलब अगर एचआर के सॉफ्टवेयर में कोई तकनीकी खराबी आ गई या बैंक का सर्वर डाउन हो गया और पैसा 15 तारीख की रात 12 बजे के बजाय 16 तारीख की सुबह जमा हुआ, तो कंपनी को पूरे साल का टैक्स डिडक्शन नहीं मिलता था? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था। ये तो बहुत ही सख्त और डरावना नियम था। 1 दिन की तकनीकी देरी और कंपनी को लाखों करोड़ों रुपए का टैक्स नुकसान झेलना पड़ता था। ये एक ऐसा नियम था जिसने व्यापार जगत में बहुत असंतोष पैदा कर रखा था, क्योंकि कई बार देरी जानबूझकर नहीं होती थी। सही बात है, सिस्टम फेलियर्स तो हो ही सकते हैं। लेकिन अब 1 अप्रैल 2026 से जो राहत दी गई है वो बहुत बड़ी है। अब एम्प्लॉयर को ये इनकम टैक्स डिडक्शन तब भी मिल जाएगा अगर वो ये पीएफ का पैसा इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख तक जमा कर देता है, जो कि आमतौर पर कंपनियों के लिए अगले साल अक्टूबर या नवंबर तक जाती है। बिल्कुल। ये सुनकर तो कई एचआर मैनेजर्स की जान में जान आई होगी। तो क्या इसका मतलब यह है कि कंपनी आप आराम से पीएफ जमा कर सकती हैं और 15 तारीख की डेडलाइन का कोई महत्व नहीं रह गया? नहीं, यहीं पर सबसे बड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बारीक बात है जिसे समझना जरूरी है। अच्छा। लेबर कानून यानी ईपीएफ एक्ट के तहत जो मासिक 15 तारीख की डेडलाइन है, वो बिल्कुल नहीं बदली है। लेट पीएफ जमा करने पर ईपीएफओ की तरफ से जो भारी पेनाल्टी या जुर्माना लगता है और जो ब्याज देना पड़ता है, वो अभी भी लगेगा। लेबर विभाग आपको नहीं छोड़ेगा। अच्छा, मतलब लेबर कानून का डंडा अभी भी चलेगा? बिल्कुल चलेगा। लेकिन फायदा ये हुआ है कि उस 1-2 दिन की मामूली देरी की वजह से अब कंपनी का इनकम टैक्स का जो भारी डिडक्शन पूरी तरह से रुक जाता था, वो अब बच जाएगा। समझ गया। ये दोनों कानूनों के बीच एक बहुत ही व्यवहारिक और समझदारी भरा संतुलन है। हाँ, सरकार ये कह रही है कि हम लेबर नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना तो लगाएंगे, लेकिन उसकी सजा के तौर पर आपके इनकम टैक्स के फायदे को शून्य नहीं करेंगे। ये एक बहुत ही शानदार मध्य मार्ग निकाला गया है। तो अब जब हम इन सारे बड़े नियमों और बदलावों को समझ चुके हैं, तो सवाल उठता है कि आगे की राह क्या है? एक्शन प्लान की बात कर रहे हैं ना? हाँ, इस शोध रिपोर्ट में अंत में एक बहुत ही स्पष्ट एक्शन प्लान और 100% कंप्लायंस चेकलिस्ट दी गई है। मार्च 2026 तक भारत की सभी कंपनियों को अपने पेरोल सिस्टम और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से अपडेट करना होगा, ताकि वे उस नई 7.5 लाख रुपए वाली सीलिंग को सिस्टम में डाल सकें और पुराने सारे जटिल फॉर्मूलों को हटा सकें। और यहाँ एचआर, फाइनेंस और लीगल टीमों के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म भी बज रहा है। हाँ, जैसा कि हमने शुरुआत में सिंगल गेटवे की बात की थी, जिन प्राइवेट पीएफ ट्रस्टों के पास ईपीएफ एक्ट के सेक्शन 17 की आधिकारिक छूट नहीं है, उन्हें तुरंत इसके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी, क्योंकि इसमें समय लगता है और बहुत सारी कागजी कार्रवाई होती है। बिल्कुल। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो 1 अप्रैल 2026 से उनका इनकम टैक्स का मान्यता प्राप्त दर्जा रातों रात छिन जाएगा, जो कि कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी। इसके बेहद गंभीर वित्तीय परिणाम हो सकते हैं। इसलिए कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को इस पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही ट्रस्ट डीड और निवेश नीतियों को भी इस नए कानूनी ढांचे के हिसाब से रिव्यू करना होगा। तो अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा का सार निकालें तो ये स्पष्ट है कि 1 अप्रैल 2026 से भारत का पीएफ, टैक्स और रिटायरमेंट इकोसिस्टम हमेशा के लिए बदल रहा है। दशकों से चली आ रही दोहरे नियमों की जो समस्या थी, वो अब अतीत का हिस्सा बन जाएगी। अब कोई दोहरे नियम नहीं रहेंगे, कोई भ्रम नहीं रहेगा। ये एक बहुत ही स्पष्ट, पारदर्शी और एकीकृत व्यवस्था की शुरुआत है। लेबर मंत्रालय और फाइनेंस मंत्रालय अब एक ही भाषा बोल रहे हैं, जिसका स्वागत ईपीएफओ और पूरी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री ने किया है। लेकिन
इस पूरी रिपोर्ट और इन गहरे बदलावों को देखते हुए अंत में एक विचार करने वाली बात सामने आती है। हाँ, इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है। देखिए, जब इनकम टैक्स की वो पुरानी 50% सरकारी बॉन्ड वाली शर्त पूरी तरह हट गई है और प्राइवेट पीएफ ट्रस्टों को भी ईपीएफओ की तरह स्मार्ट और आक्रामक तरीके से निवेश करने की पूरी आजादी मिल गई है, तो क्या भविष्य में ये प्राइवेट पीएफ ट्रस्ट पारंपरिक ईपीएफओ फंड के मुकाबले कहीं ज्यादा भारी रिटर्न देने लगेंगे? बिल्कुल। और अगर ऐसा हुआ तो क्या कंपनियां और कर्मचारी भविष्य में रिटायरमेंट बचत को एक बोरिंग सुरक्षित फंड के बजाय एक बिल्कुल नए और आक्रामक वेल्थ क्रिएशन टूल के नजरिए से देखना शुरू कर देंगे? ये वाकई सोचने वाली बात है और इसका असर आने वाले सालों में पूरे फाइनेंशियल मार्केट पर पूरी तरह से दिखाई देगा। क्या भविष्य में लोग कहेंगे कि सरकारी ईपीएफओ से बेहतर तो हमारी कंपनी का प्राइवेट ट्रस्ट है? हो सकता है। यह एक ऐसा विचार है जो भविष्य की रिटायरमेंट रणनीतियों को पूरी तरह से पलट कर रख सकता है। ये सिर्फ नियमों का बदलाव नहीं बल्कि सोच का बदलाव है। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस जटिल लेकिन बेहद महत्वपूर्ण विषय को इतनी गहराई से समझने के सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले डीप ड्राइव में।